Welcome everyone. In this video, we will discuss Class 6 NCERT Science Chapter 4 Sorting Material into Groups. Here you can see different material like metal, plastic, glass, wood or fabric. These different material are used to make different kind of object like scissor is made up of metal, bottle is made up of plastic, toys are made up of plastic, window and glasses are made up of glass, clothes are made up of fabric and table is made up of wood. So different object we have seen, they are made up of different kind of objects. Object is anything that can be seen or felt, and material the substance or substances which a thing is made or composed of. Here in this video, we will discuss what are material, why we are sorting different material into groups and what are their properties. Here is the overview of this chapter, materials. The substance or substances which a thing is made or composed of. Why we are sorting different material into groups? Because dividing material into groups make it easy to study their properties. At the same time, it also helps us to observe any pattern in these properties. Different material have different properties: appearance, hardness, soluble or insoluble, rough or smooth, transparency. So we will discuss all these properties in detail as well as why we are sorting different material into groups with picture and material. Material, the substance or substances of which a thing is made or composed of. In classroom, you can see different kind of object like table, chair, pencil box, scale, school bag. Table, chair are made up of wood or iron. Pencil box or scale is made up of plastic. School bag is made up of different kind of fabric. So wood or iron, plastic or fabric are different kind of material which are used to make different kind of object. Why we do grouping of material? Dividing material into groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. In this picture you can see we have arranged similar type of object together. ओके, चाय पत्ती एक जगह पे रखी गई है, कॉलगेट एक जगह पे रखा गया है, एडिबल्स थिंग में न्यूट्रिला एक जगह पे रखा गया है, ठीक है, और जो जूसेस है वो एक जगह पे रखे गए हैं, ऑयल एक जगह पे रखा गया है। तो जो डिफरेंट जो सेम तरह की जो चीजें हैं उनको हमने क्या किया है, एक सेम जगह पे अरेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन प्लेस, all soaps at another, grain or pulses at stored at some other place. जैसे कि आप शॉप में जाते हो तो शॉपकीपर ने किया होता है, जो कैंडीज हैं डिफरेंट कैंडीज वो एक जगह पे रखी होंगी, बिस्किट एक जगह पे रखे होंगे, सोप्स जो डिटर्जेंट वो अलग जगह पे रखे होंगे, ग्रेन और पल्सेस अलग जगह पे रखे होंगे। तो वो उसने इसलिए किया होता है ताकि वो बाद में उनको इजिली ढूंढ सके, जब कोई कस्टमर आए तो वो कंफ्यूज ना हो उनको ढूंढने में। दैट्स वाई वो क्या करता है, मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं हम, सो दैट हम उनकी प्रॉपर्टीज को और प्रॉपर्टीज में जो पैटर्न है उनको इजिली स्टडी कर सके, इनको ऑब्जर्व कर सकें। Properties of material. We choose a material to make an object depending on its property. हम जो है डिफरेंट तरह का मटेरियल यूज करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि टम्बलर को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लास, प्लास्टिक और मेटल। ग्लास और प्लास्टिक और मेटल जो होते हैं उनकी अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, तो हम जो है इधर ग्लास यूज कर सकते हैं, इधर प्लास्टिक या फिर मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वी विल डिस्कस ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन डेप्थ, सो लेट अस स्टार्ट ऑल दिस प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस, द वे दैट समवन और समथिंग लुक, कि कोई जो सब्सटेंस है वो किस तरह से दिखता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल स्लज, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, सारे के सारे जो है डिफरेंट मटेरियल हैं, अलग अलग चीजों को बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, और इनका जो शेप है, साइज है, कलर है, यूजेस है, डिफरेंट है। मटेरियल जिनमें क्या होता है, लश्यर होता है, उनको हम कहते हैं मेटल्स, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड।
कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी शाइन को खो देते हैं और डल हो जाते हैं कुछ समय बाद, क्योंकि उनपे क्या होता है, एयर और मॉइस्चर जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपकी मदर ने जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं वो कुछ समय बाद अपनी शाइन को खो देते हैं और डल दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनपे क्या होता है, एयर और मॉइस्चर जो होते हैं रिएक्ट करते हैं। इसलिए जो है वो अपनी अपीयरेंस में कैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, अपीयरेंस कैसी हो जाती है उनकी, डल हो जाती है, वो शाइनी नहीं रहते, क्योंकि उनपे क्या होता है, एयर और मॉइस्चर का एक्शन होता है। क्लियर? हार्डनेस, द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग हार्ड। हार्डनेस के बेसिस पे हम मटेरियल को दो तरह में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, रबर, वूल, फैब्रिक, और इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि लेदर। हार्ड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना, जैसे कि आयरन, वुड, ब्रिक, प्लास्टिक, डायमंड, मेटल, ग्लास, आइस एंड स्टोन। ऑल दीज आर हार्ड मटेरियल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कुछ कुछ सब्सटेंसेस वाटर में घुल जाते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल हुए। जो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, उनको कहते हैं वाटर इनसॉल्युबल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, हमने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में हमने पानी डाला, एक बीकर में हमने तेल डाला और दूसरे बीकर में हमने जूस डाला। तो जब हमने उसको स्टिर किया, हमने देखा कि जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, चाहे केरोसिन ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, या फिर मस्टर्ड ऑयल हो। हम देखते हैं कि जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और जो ऑयल होता है वो वाटर से हमेशा क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है। अगर हम जूस डालें, लाइक विनेगर डालें, लेमन जूस डालें, तो हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जूस है आफ्टर स्टरिंग के बाद वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसका मतलब जो जूस हुआ वो क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल हुआ। जैसे कि आप पानी में अगर शुगर डालो या सॉल्ट डालो तो आप देखते हो कि शुगर और सॉल्ट जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। तो शुगर और सॉल्ट है वो एक्ट करते हैं एज अ सोल्यूट, और वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। वाटर क्या करता है, अपने आप में शुगर और सॉल्यूशन को घोल लेता है, तो हमें क्या दिखता है, सिंपली पानी ही दिखेगा। तो इसलिए वाटर जो होता है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, और जो शुगर और सोल्ट हमने डिजोल्व किए होते हैं पानी में वो एक्ट करते हैं एज अ सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या गैसेस भी पानी में डिजोल्व होती हैं? तो बच्चों आपने देखा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश, ये क्या करती है, अपने ग्लैंड से ऑक्सीजन को इनहेल करती है, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है उसका जो कुछ अमाउंट होता है वो वाटर में भी घुल गया होता है। ठीक है, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको जो है फिश यूज करती है फॉर देयर सर्वाइवल। उसी तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी सर्वाइव करती है प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ गैसेज जो होती है पानी में डिजोल्व हो जाती हैं और कुछ गैसेज पानी में डिजोल्व नहीं होती। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हमने बोला कि जो हम सब्सटेंसेस हैं कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते। जो सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुलते वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वो क्या करते हैं, या तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं पानी में। जैसे कि सूखे पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक, बोट, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, और अगर आप कीज, स्टोन, कॉइन या ब्रिक्स डालो तो आप देखते हो कि ये सारे की सारी जो होती है ये पानी में डूब जाती हैं, सिंक कर जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हम चीजों को, वस्तुओं को क्लियरली देख पाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, हमने एक बाउल में फिश को लिया हुआ है, तो जो फिश है वो हमें क्लियरली दिख रही है। तो जो बाउल हुआ वो कैसा हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। इसका मतलब कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनसे हम क्लियर इमेजेस को देख सकते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो है लाइट इजीली पास हो जाती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। इसलिए जो है हमें ऑब्जेक्ट्स सेम कलर के दिखते हैं जैसे वो एक्चुअल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
Glass, water, air and some plastic are the example of transparent material. Now translucent material. ऐसे मटेरियल जिनसे हम क्लियर इमेजेस को नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे कि ऑयली पैच ऑन पेपर। अगर आप पेपर पे ऑयल लगा दो तो आप देखते हो कि जो ऑयल की दूसरी साइड, जो एक साइड से अगर दूसरी साइड देखो तो आपको क्लियर इमेजेस नहीं दिखेंगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इस पिक्चर में आप देख रहे हो एक लेंस है और एक ग्लास है। उनसे हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो कैसी इमेजेस दिख रही हैं? ब्लरी इमेजेस, ब्लरी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें से है बहुत कम लाइट जो है पास होती है, इसलिए हमें जो है बहुत कम दिखता है, धुंधला दिखता है, क्लियर इमेजेस नहीं दिखती। अब आता है ओपेक। ऐसे मटेरियल जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, आर पार जिनके हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल। ओके, जैसे वुडन बॉक्स हो गया, डोर हो गया, डोर के आर पार आप देख नहीं सकते क्योंकि वहां से लाइट जो है वो पास नहीं होती। टेडी हो गया, ठीक है, इस तरह से। आप शूज हो गया, शूज के अंदर भी आप नहीं देख सकते क्योंकि उनमें से क्या होता है, लाइट पास नहीं होती, इसलिए जो है हम उनके आर पार नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? When light does not pass through opaque objects, it forms shadows। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, सनलाइट जो है उस पेड़ पे पड़ रही है तो पेड़ की क्या हो रही है, शेडो बन रही है। ठीक है, तो ये ट्री की जो शेडो बन रही है, ये ट्री कैसा हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही घना है ये और यहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या बना रहा है, अपनी शेडो बना रहा है। ठीक है, here you can see the picture of elephant and giraffe। एलिफेंट और जिराफ का जो फ्रंट पोर्शन है वो हमें बहुत क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे मटेरियल जिनसे हमें क्लियर इमेजेस दिखे उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मिडल पोर्शन जो है एलिफेंट और जिराफ का वो बहुत ही धुंधला और ब्लरी सा दिख रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हमें ब्लरी इमेजेस दिखे या क्लियर इमेजेस ना दिखे उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और जो बैक पोर्शन है एलिफेंट और जिराफ का वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हमें जो है कुछ भी ना दिखे, आर पार कुछ भी ना दिखे, उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप समझ आ गया होगा। Thank you and keep watching my channel Bhagwati Studies. Students, if you have any doubt, please comment in comment box. I will answer your each and every query. Moreover, like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you get the notification of my recent uploaded video. Thank you.